کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ لاہور میں 2 دہائیوں بعد بسنت کا ایک بار پھر سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ شہر کے کونے کونے میں بھوک آٹا کی اب صدائیں گونجیں گی۔ ہر گھر کی چھت سے تہوار کو بھرپور انداز میں ویلکم کیا گیا ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، گانے اور چھتوں پر محفلیں اب جم چکی ہیں۔ لاہور کے سارے رنگ ایک ایونٹ میں سمٹ چکے ہیں اور شہر کی تمام سڑکوں کو سجایا گیا ہے۔ گلیاں پتنگوں اور گڈوں سے سج چکی ہیں، جبکہ عوام کے چہروں پر خوشیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اندرون لاہور سمیت شہر کی چھتوں پر جشن کا سما ہے۔ جی ہاں، جن زی سے تعلق رکھنے والی نوجوان نسل پہلی بار بسنت کا تہوار منا رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ کافی پرجوش بھی دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ بزرگ شہری ماضی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ مرد، خواتین، بچے سبھی بسنت کے آغاز پر انتہائی پرجوش نظر آ رہے ہیں، انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں۔ بسنت پھر سے آ گئی ہے، اب گلی گلی بوکاٹا کی پکار ہے اور گھڑی نے 12 بجائے تو آسمان پتنگوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا ہے۔ لاہور میں 2 دہائیوں کے بعد بسنت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اب 1 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، بلکہ اس سال پورے 3 دن کی بسنت منائی جائے گی۔ ہر گھر کی چھت سے تہوار کو بھرپور انداز میں ویلکم کیا جائے گا اور ڈھول کی تھاپ، گانے اور چھتوں پر محفلیں جم گئی ہیں۔ لاہور کے سارے رنگ ایک ہی ایونٹ میں سمٹ آئے ہیں۔ شہر کی سڑکیں، گلیاں پتنگوں اور گڈوں سے سج گئی ہیں۔ یہ مناظر بھی ناظرین آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر گھر کی چھت اس وقت سج چکی ہے اور اس وقت پورا لاہور جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، جیسے برسوں اس ایونٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا اور فائنلی 2 دہائیوں کے بعد یہ ایونٹ جو ہے بسنت کا وہ منایا جا رہا ہے اور تمام شہری جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ بھی ہیں اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چھتیں جو ہیں وہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے ہی سجنا شروع ہو چکی تھی اور اب باقاعدہ طور پر پتنگیں جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو جائیں گی اور آسمان جو ہے وہ اگلے 3 دن تک ہمیں پتنگوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ رنگ برنگی پتنگیں ہوں گی، بچے کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، سبھی اس تہوار کو منانے کے لیے پرجوش تھے اور اب باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہو گیا ہے اور اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد زین ہم دیکھیں گے کہ آسمان پہ کتنی بڑی تعداد میں ہمیں بے شمار پتنگیں بھی نظر آئیں گی اور دوسری بات کہ میں بھی اس ایونٹ میں یہ جان سکی ہوں کہ تاوا بھی ہوتا ہے، 1.5 تاوا بھی ہوتا ہے اور پھر پونا تاوا بھی ہوتا ہے اور پتنگ بھی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس سال بسنت صرف اور صرف لاہور میں منائی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہوٹلز بک ہو چکے ہیں، تمام جو اونچی چھتیں ہیں وہ بک کر لی گئی ہیں، تمام پلازوں کی چھتیں بک کر لی گئی ہیں اور لاکھوں نہیں، ایک جگہ پر سوشل میڈیا پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ کروڑوں میں بھی چھتیں بک کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے۔ یہ وہ بسنت ہے کہ جو 2 دہائیوں کے بعد لاہور میں واپس آئی ہے، نہ صرف لاہور میں واپس آئی ہے بلکہ پورے پاکستان نے لاہور میں آ کے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کچھ مناظر ہیں، آپ خوشی دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ان مناظر میں کہ کس طرح سے ڈھول کی تھاپ پر وہ رقص کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ بسنت کا یہ تہوار جس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، اب یہ تہوار 2 دہائیوں کے بعد لاہور میں واپس لوٹ آیا ہے اور اس کو منانے کے لیے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور بھرپور طریقے سے اس کو منانے کے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے تیاریاں کی جا رہی تھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو تگو دو تھی کہ ڈور مل جائے، گڈے مل جائیں۔ اب ان تمام چیزوں کو جب حاصل کر لیا گیا ہے، جن لوگوں نے حاصل کر لیا، جو لوگ خرید پائے وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور تمام وہ لوگ جو گڈے اور ڈور حاصل کر سکے ہیں وہ اب منانا اس تہوار کو شروع کر دیں گے، جبکہ باقی لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ پرائسز کچھ کم ہوں گی، قیمتیں کم ہوں گی تو اس کے بعد خریداری کریں گے، وہ کافی اس ساری صورتحال میں مایوس نظر آئے ہیں کیونکہ آج بھی قیمتیں کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، ڈبل پر قیمتیں پہنچ گئی ہیں اور جو شہری ہیں وہ اس حوالے سے کافی نالاں بھی نظر آ رہے ہیں۔
लेकिन उन्होंने कहा कि हम फिर भी खरीदेंगे, और जिनके पास पतंगे और गुड्डे जो थे उन्होंने खरीद लिए थे। डोर जो थी वो शॉर्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम इसको उठाएंगे कैसे, तो जितना भी उनको महंगा पिन्ना मिला उन्होंने वो ख़रीदा है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से SOPs का बारहा ऐलान भी किया गया, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो शहर शहर गली गली वो पूरा लाहौर जो है वो गलियों में खुद भी गई और सारे इंतज़ामात भी उन्होंने देखे और लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, और वहाँ पे भी उन्होंने बताया। और ये आप नाज़रीन मनाजिर देख सकते हैं कि अब गुड्डियाँ उड़ना शुरू हो गई हैं, और ये वो मनाजिर हैं हुदा के जिनको अहले लाहौर ने एक लंबे अरसे तक मिस किया है, 2 दहाइयों तक मिस किया है, और अब दोबारा से वो मनाजिर लाहौर में देखने को नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, और मरियम नवाज़ का जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जब मरियम नवाज़ पहुंची तो लोगों ने वहां पर उनका शुक्रिया भी अदा किया कि इस इवेंट को जो ख़त्म कर दिया गया था, जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, अब कंट्रोल्ड तरीके से मनाना शुरू किया गया है। और इसकी जो तमाम तर तैयारियां हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जो जोश व खरोश है लोगों का नाज़रीन, वो इन स्क्रीन्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों से ये छत खचाखच भरी नजर आ रही है। और अब कुछ ही देर में आसमान के ऊपर हमें बेतहाशा गुड्डियां उड़ती भी नजर आएंगी। जी बिल्कुल, SOPs की मैं बात कर रही थी, और हुकूमत की जानिब से भी बारहा कहा गया है कि SOPs के अंदर रहते हुए आप इस इवेंट को एंजॉय करें और शहरियों की हिफाजत करें। और ऐसी किसी भी डोर पे पाबंदी लगाई गई थी, धाती हो या केमिकल हो, इसलिए QR वाले जो पिन्ने थे वही फ़रोख्त हो रहे थे, और गुड्डे और पतंगे भी वही फ़रोख्त हुई हैं, और उन्हीं को उड़ाने की इजाज़त भी है। गहमा गहमी है इस वक्त पूरे लाहौर में, और ना सिर्फ लाहौरी बल्कि जो गिरदो नवाह के शहर हैं, यहाँ तक कि बैरून मुल्क से भी कई लोग सिर्फ इस फेस्टिवल को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए लाहौर आए हैं। यहाँ तक कि तमाम के तमाम लाहौर के जो होटल्स हैं माफ़ कीजिएगा, वो बुक्ड हैं इस टाइम। तो ये हाल है, और सारे लाहौरी जो हैं वो पुरजोश हैं। हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं इस वक्त, स्क्रीन्स को देख के हम भी पुरजोश हो रहे हैं, और ज़ैन मुझे लगता है कि आपका भी यकीनन बसंत का कोई ना कोई त्यौहार मनाने का कहीं ना कहीं तो प्लान होगा ही। जी बिल्कुल, त्यौहार तो ज़रूर मनाने चाहिए हुदा, और इस हवाले से एक हमने भी अरेंजमेंट किया है, ज़रूर उसको भी मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को ये बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि जो लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, और जो लोग ऐसी डोर का इस्तेमाल करेंगे कि जो किसी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनेगी, या ऐसी डोर का इस्तेमाल करेंगे जो किसी की जान लेने का बाइस बन सकती है, तो उसकी फौरी तौर पर निशानदेही कर ली जाएगी, क्योंकि ड्रोन्स भी इस वक्त हवा में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले भी हमने ये देखा कि सर्विलेंस की जा रही है मुकम्मल तौर पर, और छतों पर जो लोग उस वक्त गुड्डी उड़ा रहे थे कि जब पाबंदी थी, तो उनको भी पकड़ा गया। तो जो SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो किया। चलिए ज़ैन, अब अपने रिपोर्टर्स की जानिब बढ़ते हैं। सरफराज अहमद इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हैं, और सुलेमान जो हैं वो लिबर्टी चौक पे मौजूद हैं। सरफराज, आपकी जानिब बढ़ेंगे। कुछ देर पहले आपने बताया कि सारे पुरजोश थे और ख़रीदारी कर रहे थे, अब बाकायदा आगाज़ हो चुका है 12 बजते ही। अब बताइएगा इस वक्त अंदरून लाहौर की छतों की क्या सूरत हाल है, और पतंगे कितनी उड़ना शुरू हो गई हैं? इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, और बसंत फेस्टिवल का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, और जो शहरियों का जोशो खरोश है वो भी हमें जो है वो दीदरी देखने में नजर आ रहा है। यूं तो लाहौर के जो शहरी हैं वो आज शाम से ही जो है वो डोर गुड्डी लेकर छतों के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही रात को 12 बजे हैं तो शहरियों ने गुड्डी डोर जो है वो उड़ाना शुरू कर दी है। और इस वक्त लाहौर शहर में हर तरफ जो है वो हमें खुशी और जश्न का जो समा है वो देखने में हमें नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं लाहौर के अंदरून शहर में शेरावाला गेट की एक छत के ऊपर मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जो है वो खुसूसी तौर पर इस छत में बसंत मनाने के लिए जो है वो इंतजामात किए गए हैं। इस छत को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो फूलों के साथ सजाया भी गया है। यहाँ पर जो लाइटिंग्स है वो भी यहाँ पर जो है वो की गई है, और शहरी जो है वो अपनी डोर और गुड़ियाँ लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उन्होंने डोर गुड़ियाँ जो है वो उड़ाना शुरू कर दी हैं। और क्योंकि मैं अंदरून शहर में
7वीं मंजिल के ऊपर एक छत के ऊपर मौजूद हूँ। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को दिखाएं थोड़ा सा व्यू, कि ये देखें ये अंदरून शहर के मनाजिर है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि कोई छत लाहौर शहर की ऐसी नहीं है जहां पर जो है वो इस वक्त जश्न और पोका टाके जो है वो नारे हमें दिखाई ना दे रहे हो, और आसमान इस वक्त रंग बिरंगी पतंगों से जो है वो हमें भरा हुआ देखने में नजर आ रहा है। और शहरी जो है वो बार बार ढोल की थाप के ऊपर जो है वो यहाँ पर भंगड़े भी डालते दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि शहरी यहाँ पर क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, ढोल की थाप के ऊपर यहाँ पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस वजह से हमने ढोल वाले को कहा कि आप थोड़ा सा खामोश हो जाए ताकि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि अंदरून शहर में क्या हो रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी जो है वो मौजूद हैं जो कि खास तौर पर बरतानिया लंदन से जो है वो बसंत मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसा लग रहा है बसंत का फेस्टिवल? देखिए हम बचपन से लाहौर के रहने वाले हैं और लाहौर में काफ़ी ईयर्स के बाद ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो आज सुबह ही हम लैंड हुए हैं लंदन से, ऑल द वे फ्रॉम लंदन, और लाहौरियों का दिल जो है वो भरपूर है और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से बसंत मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें आप, इसी तरह बसंत मनाते रहें। और मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। ये 7 मंजिला छत है इस वक्त, ये अंदरून शेरावाला गेट की सबसे ऊंची छत के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और जिनकी ये छत है उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं, और भाई आप बताएं आपके पास इतनी बड़ी छत थी तो आपने किराए पे क्यों नहीं दी ये छत? देखिए हमने बहुत सालों इंतज़ार किया है इस मूवमेंट का कि हम वो पुराने वाला जो हमारा कल्चर था उसको वो दोबारा एंजॉय करें। मतलब मुझे याद है 2009 में लास्ट बसंत मनाई थी, तब मैं छोटा था, तो वो मेमोरीज आज भी समझ लें कि वो दोबारा बैक आप जो है ना वो 2011 में चले गए जब 2009 से कम बसंत मनाते थे। अगर हम ढोल थोड़ा सा बजवाएं तो थोड़ा आप करेंगे? सर थोड़ा सा ढोल बजाइएगा। आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लाहौर के शहरी हैं वो बसंत का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं, और ये एक दिन नहीं है 3 दिन है।